Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the performance and career management class, students. Today we are going to discuss regarding measuring behaviors, because earlier we have discussed about the accountabilities, then we discussed its objectives, and then we discussed its standards. But as far as the behaviors are concerned, behaviors are quite different than that of the standards that we have talked about. Behaviors are, as you know, that quite a different task, because behavior changes by the passage of time. For example, if we are in a class, our behavior is different. If we are playing with friends, our behavior might be different. If we are with the families, behavior would be different. So behavior changes in a same person by the passage of time. So uh, while measuring the behaviors, actually behaviors are related with the competencies. Now, what actually the competencies are, they are basically measurable clusters of knowledge, skills, or abilities that are critical in determining how results will be achieved. Like, if I would like to give you an example of customer service, uh, or written or oral communication, or creative thinking, or dependability, all these are basically the examples of competencies. Then there are indicators. Now indicators are related with the competencies. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हम जो बिहेवियर होता है, हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. हमें ये नहीं पता लग सकता कि इसका जो है वो इस टाइप पे बिहेवियर कैसा है. हमें कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसकी बेस पे हम ये अखज़ करते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये इंडिकेटर्स हैं, इस वजह से जो है वो इसका ये बिहेवियर हो सकता है. मैं आपको आगे जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि इसका जो है वो हम किस तरह से जो है वो इसको चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस तरह से पता कर रहे होते हैं. एंड देन देयर कम्स चूज मेजरमेंट सिस्टम. नाउ ऑन द बेसिस to identify the competencies and to identify the indicators, we basically choose the measurement system. So let's first of all discuss the identify competencies. As I told you earlier that identify competencies are the measurable clusters of knowledge, skills and abilities, and they are critical in determining how results will be achieved. Because in competencies we are discussing, or we are measuring, or we are going to measure the knowledge that a particular individual or a particular personnel or the group of personnel have. Then we have to see through the behaviors that whether it contains the required skills or not, and then similarly the abilities. So these are the very important parts of behavior. Because in behavior we basically see three things, and then to measure the competencies we have basically two different types of competencies. Now one type is differentiating, that distinguish between superior and average performance. इसके अंदर जो है वो हम आपस में लोगों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं. लोगों का कंपैरिजन इस तरह से कर रहे होते हैं कि ये जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, या क्लास के अंदर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि उनमें से सुपीरियर परफॉर्मेंस किसकी है, या एवरेज परफॉर्मेंस किसकी है, या वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो किसकी है. तो वो विद इन दोज एम्प्लॉयज़ वी बेसिकली check the things, or we basically measure their performance. While as far as the threshold is concerned, it is needed to perform to minimum standards. अब इसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम जो है वो कोई भी काम करने के स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं. तो यहाँ पे हम वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए होते हैं. क्या ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, एक थ्रेशोल्ड हमने रखा होता है
कि क्या ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं कर रहा और वो वहाँ पे काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे जो है वो नेस्ले की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर नेस्ले के अंदर जो है वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो हमने लास्ट डिस्कशन के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने मिल्किंग पॉइंट्स हमने बनाए हुए थे। तो मिल्किंग पॉइंट्स के जो हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि वहाँ पे जो है वो हाइजीन का ख्याल होना चाहिए, वहाँ पे चिलर्स होने चाहिए जो दूध को जो है वो ठंडा रखें, वहाँ से जो गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट जो है वो जा रही हो वो टाइम पे जा रही हो। तो वो स्टैंडर्ड्स अगर हमने सारे के सारे रखे हुए हैं तो क्या वो स्टैंडर्ड्स मीट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो थ्रेश होल्ड इज़ बेसिकली दैट कॉम्पिटेंसी। ये इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकती है, ये टीम से रिलेटेड भी हो सकती है, ये प्रोसेस से रिलेटेड भी हो सकती है। इसी तरह से जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो दीज आर बेसिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स and it is used to measure the extent to which competencies are present or not. We see whether the competencies are present or not regarding that behavior through observing the things. हम यहाँ पे जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ही ये चीज़ें जो है ये हो रही हैं या नहीं हो रही। लेट सपोज़ मैं आपको एक प्रोफेसर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आजकल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आमने जो है वो कम्युनिकेशन को मेजर करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। अच्छा, फिर एक प्रोफेसर को अगर हमने उसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो वो कम्युनिकेशन जो है वो एग्जैक्टली उस टाइम पे होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई डिस्कशन सेशन रखा है तो वो डिस्कशन सेशन टाइम पे होगा तो फिर वो कम्युनिकेशन हो सकेगी। अगर वो टाइम पे नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर वो ये आ जाती है कि डेट एंड टाइम आ जाती है कि प्री असाइंड जो है वो डेट एंड टाइम अवेलेबल हो। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी डिपेंड कर रही होती हैं डिफरेंट इंडिकेटर से। हम डिफरेंट इंडिकेटर से पता लगाते हैं कि अच्छा ये कॉम्पिटेंसी